Hello everyone, welcome back to another vlog, and today I'm here at Parak Studio and I'm gonna show you the studio. I'll tell you the cut only then, otherwise record. Okay. Yeah. Alright, so as you guys can see, we are all set. We are ready to do the magic. Begin the show. आज से 4 साल पहले तो मैं भी जाता था भाई दिल्ली मुंबई डोर टू डोर ब्रो, और मैं जाता था लिटरली, मैं जाके खाली हाथ वापस आता। Hello everyone, welcome back to another vlog, and today I'm here at Parak Studio and I'm gonna show you the studio. और इस स्टूडियो के लिए आप आ सकते हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन, एंड फ्रॉम छतरपुर मेट्रो स्टेशन से जस्ट नियर लाइक अराउंड 5-10 minutes, I guess, right? Yes. So 5-10 minutes by auto or by cab. You guys can come here and come, I'll show you. Okay. See the guy, the lens man. Okay, so let's introduce. So he's Daparak. Okay, we used to call him Daparak, but I don't know Parak, right? So he's a very brilliant, artist, photographer, you can say, and a very cool chick man as well. Come, I'll show you the magic. What is this? Lighting. Doesn't it look beautiful? Yes. Doesn't it look cute? I mean, this area is very cute and very, small space, but very beautiful. And दापरक ने बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, और यहाँ पे हम मेकअप कर सकते हैं। लाइक जैसे आज ओलिविया का फोटोशूट है, मैं बताना ही भूल गया कि हम आए आज यहाँ पर है कि आज ओलिविया का फोटोशूट है। सो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि व्लॉग बनाऊँ, बट मेरा व्लॉग में थोड़ा गैप आ गया था। वाई? The reason is because I was busy doing, shoots and giving auditions, going here and there, like Delhi to Mumbai, Mumbai to Ahmedabad, Ahmedabad to Goa. So finally मैंने decide किया कि चलो क्यों ना vlog बनाया जाए. So that's why मैंने बोला ओलिविया कि just, hold my camera and let me start and let me record for my YouTube vlog. So आप भी जरूर आए and visit करें, and I'm like pretty much sure कि you guys gonna love this guy. I'm sure you gonna love him, and I'm sure कि आपको ये स्टूडियो जरूर पसंद आएगा। एंड आप एक बार आओ, जिस भी मॉडल या जिस भी एक्टर को अपना एक पोर्टफोलियो कराना है, अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करानी है प्रोफेशनल तरीके से, काफ़ी जो प्रोफेशनल और ऑथेंटिक लगे, काफ़ी ज़्यादा गुड लुक लगे, अच्छा लुकिंग लगे। सो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए एंड ज़रूर यहाँ पे विजिट करिए। दापरक को कांटेक्ट कीजिए। मैं अपने ब्लॉग में इनका इंस्टा हैंडल डाल दूँगा, इनका नंबर डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड प्लीज़ कम। एंड आप मेरा रेफरेंस भी ले सकते हैं, आप बता सकते हैं इनको कि आई एम आकाश थापा's फ्रेंड। सो आप ऐसा कुछ बोलिए, जो भी है आपको बोलना हो वो आप आ सकते हो, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ कम एंड प्लीज़ जस्ट कम and just experience this. Brother is setting the camera and the tripod, everything. वैसे भी हम काफ़ी लेट हो गए थे, एंड लेट होने का रीज़न यही था कि हम निकले तो टाइम पर थे, बट द थिंग इज़ दैट कि काफ़ी रश मिला हमको, काफ़ी ट्रैफिक जैम मिला, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। This light is very good. मैंने इनका काम देखा है काफ़ी टाइम से, और जो ओलिविया की एल्डर सिस्टर है, उनका मेकअप मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती हैं। सो यू गाइस कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। Makeup artist is busy right now. Yeah, so you guys can follow her. Please do follow. I see like. Hi. Okay, so the main guy is here. All right, so as you guys can see, we are all set. We are ready to do the magic. Begin the show. So, say hi. How are you feeling? Say something in Hindi. मेरा बहुत भूख लगी है। मेरे को बहुत भूख लगी है। It's okay, you will learn. Don't worry. You can. I'll show you guys कि like we are all set. Photographers are ready. Okay, everyone is ready. Now let's do it.
So before starting our photo shoot, हमें किसी ने बताया कि Ay, ito, ito. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. So we are having some juice pizzas from Licious Pizza Hut. You want to try this? Try this with black salt. 나가 Mm. 저희처럼 Try this. See, told you na. Mm. 영원 영어 Wow guys, आप भी ट्राई कीजिए सनी जूस. ये ब्लॉग मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ अब और एंड पार्ट में बना रहा हूँ उसका. सो मैं इस ब्लॉग के थ्रू ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को आई बीन गेटिंग मैसेजेस एंड यू नो लॉट ऑफ डीएम्स की लाइक मेरे को पर्सनली लोग पूछ रहे हैं टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पे एंड इंस्टाग्राम पे कि भाई कैसे क्या करे, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कि ऑडिशंस कैसे दे, क्या दे. तो सी यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो सबको होता है, सबके मन में होता है कि हम ये करें, मुझे ये करना है, ये पैशन फॉलो करना है, ये करना है. लेकिन मैं इतने लोगों को देखता हूँ कि आप लोग पेशेंस कहाँ है, आप लोगों का पेशेंस कहाँ है. भाई मैंने कितनों को रेफर करा है, मैंने बोला भी है यहाँ ऑडिशन ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके स्टूडियो में जाकर आपको इंट्रोडक्शन ये देना पड़ेगा अपना, फिर आपका डाटा सर्कुलेट होता है. लेकिन मैं देखता हूँ लोग जाते ही नहीं है, गिव अप कर देते हैं. एक बार जाते फिर कहते हैं भाई वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. भाई एक बार जाने से कुछ नहीं होता. मुझे अभी भी याद है भाई जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था आज से 4 साल पहले, तो मैं भी जाता था भाई दिल्ली मुंबई डोर टू डोर ब्रो. और मैं जाता था लिटरली, मैं जाके खाली हाथ वापस आता था. और उस टाइम मुझे भी ये लगता था कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा. तो इससे बढ़िया है कि यार कोई जॉब कर लो, समझ रहे हो. एंड भाई एज आई वॉज गेटिंग यू नो ओल्डर डे बाय डे, सो मेरे को तो बहुत प्रेशर था और फैमिली से मेरे को इतना सपोर्ट नहीं था और अभी भी नहीं है. अभी भी मैं 1 महीना 2 महीना खाली बैठ जाऊँ तो मेरी फैमिली लाइक कि भाई तू कुछ जॉब कर या यू नो कि गेट सेटल सून, बट यू नो डोंट बी डिपेंड ऑन दिस दीज थिंग्स एक्टिंग और ये सब, ये कब तक चलेगा कब तक नहीं. सो मेरी एक यही आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस ब्लॉग के थ्रू आपको कहना चाहता हूँ कि होगा सब कुछ, लेकिन आप पेशेंस रखो, समझ लो. विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं होगा. आप एक बार नहीं, आपको 10 बार भी जाना पड़ेगा, आपको 50 बार भी जाना पड़ेगा, समझ रहे हो. मैंने भी एक टारगेट बनाया था अपना भाई कि मैं भी दिन के 4 या 5 घंटे अपने ऑडिशंस को दूंगा. फिर चाहे उसमें मैं 1 ऑडिशन दूं, 2 ऑडिशन दूं, 3 कास्टिंग एजेंसीज या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से मिलूं या जाऊं, लेकिन मैं 5 घंटे 4 घंटे अपने दिन के देता था ऑडिशन को. और शायद उसी की वजह से, और पेशेंस बहुत था भाई मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि मेरा इतनी जल्दी नहीं होने वाला कुछ भी, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ब्रो. लेकिन वो टाइम कब बीता कब निकल गया पता ही नहीं चला यार. 3 साल स्ट्रगल किया, लेकिन चौथे साल में चीजें ऐसी हुई कि पूछो मत. एंड ट्रस्ट मी, मैं इसीलिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, ये करता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही वो वैल्यू पता है, समझ लो. और मुझे ये भी पता था कि जो चीज लाइन में चूज करने जा रहा हूँ उसमें मेरे को टाइम लगेगा ही लगेगा. और अभी भी मैं कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कर रहा भाई, अभी भी लोग मुझे जानते हैं बॉम्बे और दिल्ली में, लेकिन स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग. अभी भी मैं जाता हूं सेम उसी एंथुसियाज्म, सेम उसी पेशेंस लेवल के साथ ऑडिशन देने. हम ऐसी लाइफ को आगे बढ़ाते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे. जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी हार नहीं मानेंगे. और अगर असफलता भी मिलेगी तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे ब्रो, उसको भी लेके चलेंगे. उसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिली और मेरे को असफलता मिली, मैं उसको भी लूंगा. अनसक्सेसफुल होना भी बहुत बड़ी बात होती है एक लाइफ में, कि वहां आप टॉप पर बैठे हो. तो जब आप इतनी रिजेक्शन झेल के बैठे हो तो आप टॉप पर बैठे हो, फिर आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, समझ लो. तो वहां बहुत चीज सीख चुके होते हो, तो आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो लोगों से, और अपनी जो आपने जो लाइफ में नहीं अचीव किया उसको भी. तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जस्ट यू नो गाइस, प्लीज पुट सम एफर्ट्स, समझ लो. थोड़ा क्रिएटिव बनो, सब होगा, सब चीज होगा. मैं भी आज से सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा हूं. मुझे भी किसी एक भले इंसान ने कहा था कि भाई टाइम लगता है, टेंशन मत ले. जब तू 30 की एज में होगा ना, मेरी एज में, तब तू देखियो तू भी कहीं ना कहीं ग्रो कर लेगा.
और सच में मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे वो बात सुन के आज मुझे वो फील होता है कि हाँ किसी ने कुछ ऐसा कहा था और मैं कितना पेशेंस रखा था मैंने उस टाइम पे, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो चलिए मिलते हैं अनदर ब्लॉग पे गाइस, एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।